नमस्कार, डॉक्टर स्पीच के इस बहुत ही विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुनमुन। मुनमुन नमस्कार। और देखिए, आज जब हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात के साथ लोग मौजूद होंगे, उनके जवाब वो चाहते होंगे किस तरह से, क्योंकि कोरोना को लेकर जो सवाल जवाब है लोगों के मन में, हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम सवालों के जवाब उन लोगों को मिल जाएं, ताकि जो भ्रांतियां हैं, जो भ्रम उनके मन में कोरोना को लेकर है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाए। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में लगातार हर दिन बहुत ही विशिष्ट मेहमान डॉक्टर्स जुड़े होते हैं, वो आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। और अब से कुछ ही देर के बाद हम एक नंबर डिस्प्ले करेंगे, उस नंबर पे आप टेलीफोन करके फ़ोन करके वो जो तमाम जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं हमारे गेस्ट के साथ। So this is a live call-in show, Aseem, and the viewers can call us and ask us your questions on COVID-19. We'll be flashing two numbers for you on your screens, and you'll be taking note of those numbers and calling us to ask your questions on COVID-19. Besides that, on DD News' Facebook page, you can go and see the live link of Dr. Speak, and to that link, you can post your queries with regards to COVID-19. All of that will be answered. Our two eminent guests joining us now are Dr. P. Sharat Chandra, Professor Neurosurgery, AIIMS, and Dr. Ghanshyam Pangti, his Professor, Department of Medicine, Lady Hardinge Medical College. I welcome you both to Dr. Speak. Dr. Pangti, I'll come to you first on what do you make of the current COVID-19 situation in the country, considering that there was a plateau of cases for 3 weeks, and after that we've seen that there has been a drop, and we are nearly half the levels of what we were in mid-September when the cases were peaking in our country. Munmun, thanks for the invitation. And I will just like to highlight the situation in India. Basically, 3 weeks back, as you said, there was a really peak in India. We were having almost 1 lakh cases per day, which was very big compared to our overall country and infrastructure. And luckily, within last 1 week, what we are seeing that the cases has come down. Now it has come to 30 to 40,000. So it is very good news for India. Although it's not that good for European countries as well as USA. They are still having a peak of up to 2 lakhs cases in USA and 30 to 40,000 plus cases in Europe, France, and everywhere. So I will say we are in a better situation compared to our Western counterparts, and we are doing very good, and we are still doing a good number of testing. It's not that we have decreased the testing. We are doing good number of testing, and we have facility available in our hospital. Our beds are not full as compared to other countries, and we are in a better shape, and hopefully with vaccine we will do much better than this. जी, डॉक्टर शरद चंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में। और सर, हम लगातार ये समझ रहे हैं और जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब ये वैक्सीन आ जाएगी, जो प्रायोरिटी हमारी है, जिनको हम ये देंगे, वो तय है पहले से कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्हें दिया जाएगा और इस तरह के लोगों को दिए जाएंगे। लेकिन सर, मेरा सवाल ये भी है, बहुत से लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या जो डायबिटिक जो पेशेंट हैं, टाइप 1 की बात कर लें या फिर टाइप 2 की बात कर लें, क्या उन्हें भी, चूंकि उनके मन में भी ये सवाल है क्या हमें कब लगेगी ये वैक्सीन, तो क्या डायबिटिक जो पेशेंट हैं, क्या उन्हें भी उसी पंक्ति में लाकर खड़े करने की जरूरत है कि उन्हें भी जब ये वैक्सीन आए तो सबसे पहले उन्हें भी लगे? जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है, I think the biggest priority are the frontline workers, and by frontline workers I don't mean all the doctors, but the medical staff which include nurses, which also includes technicians, या OT जो ward boys हैं, and also the doctors who are at the COVID situation, जो directly COVID patients को handle कर रहे हैं। ये इसलिए जरूरी है because this is going to strengthen our healthcare system. It is going to provide confidence for our healthcare workers so that they can provide care much more easily and much more better and with more of confidence. That is the whole idea. The second category obviously has to be people who are elderly, who are 65 plus, because whatever said and done, elders, they form the wisdom pool of a society. You know, we take all the principles of how the society functions from our elders only, and particularly in our Indian as per our Indian customs, we always feel that we always get blessings and whatever we get from the elders. So the pool of elderly people, they have to be protected, and that's the reason, you know, I'm sure जैसे ही टाइम जाएगा बाकी लोग भी आइडेंटिफाई होंगे और उनको भी बहुत जल्दी भी वैक्सीन मिल जाएगी। और देखिए एक प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे बहुत सारी वैक्सीन आ रही हैं दुनिया में, तो आप पूछ सकते हैं इतनी सारी वैक्सीन क्यों आ रही हैं? तो द होल स्ट्रैटेजी इज मोर द वैक्सीन वी हैव, more multi-pronged is approach,
and better is going to be our war against this disease. That is why I believe in the next couple of months to years, a lot of vaccines are going to come up, and there is going to be enough of choice for a lot of people. Dr. Sharad Chandra, how soonest can we expect a vaccine in India, considering that Pfizer has applied for emergency use authorization? Besides that, Indian vaccines too have applied. Covishield has applied and Covaxin has applied, or should I say Serum Institute and Bharat Biotech, they have applied for emergency use authorization. The DCGI, the Drug Controllers General of India, is supposed to decide, and he will decide on the basis of a committee of experts' opinion. So how soon should we expect a vaccine which is indigenously developed in India for Indians? See, I won't be in a position to comment on that, but all I can say is developing a vaccine is a very, very complex process. So you have a DNA based vaccine, you have a RNA based vaccine, you have viral vector based vaccines, you have a viral subunit based vaccines, then you have this live attenuated vaccines, inactivated virus vaccines, VPL vaccines, split vaccines. So it's a whole lot of spectrum of vaccines which all the people are looking at on how to develop it. Similarly, you have something called as passive immunity or just antibody administration, जिसमें antibodies आ रहे हैं, plasma therapy already चल रहा है, mRNA induced antibodies भी आ रहे हैं, and different companies are targeting at different types of vaccines. For example, Moderna and Pfizer, they're targeting at RNA based vaccine. Similarly, Oxford and AstraZeneca, they're targeting at viral vector based vaccines. And similarly, Novavax is targeting at viral subunit based vaccines. So the whole idea is, जैसे मैं पहले बता रहा था, the strategy is multi-pronged. You know, there we attack the virus from all the fronts. We will have the best possible opportunity to defeat the virus and control the virus. जी. But how soon it is going to come, I'm afraid I cannot comment on that. But I would say soon enough. If the whole world is working towards it. बिल्कुल। और डॉक्टर पांगती, चूंकि सोशल मीडिया पे भी लगातार इस कार्यक्रम के जरिए सवाल आते हैं, और ये एक सवाल आ रहा है डॉक्टर पांगती कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी और वैक्सीन लोगों को लगनी शुरू हो जाएगी, उसके बाद से हमें मास्क लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे आप? असीम जी, ये बिल्कुल ही गलत बात होगी, क्योंकि जो वैक्सीन ये आने वाली है, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब ये वैक्सीन आ जाएगी, ये इमरजेंसी अप्रूवल है, तो इसमें बहुत सारा डाटा है जिसको कि साइंटिस्ट को एनालाइज करना है, उसके बाद उन्हें ओपिनियन देने की इसको यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो एक तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप जल्दी से अप्रूवल दे दो, तो लेट देम सी द ऑल द रिजल्ट, देन ओनली दे शुड डिसाइड रिगार्डिंग मास्क। क्योंकि ये वैक्सीन 100% कोई भी वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी, जैसे कि जो इंडियन वैक्सीन है या जो ऑक्सफोर्ड से वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया में बना रही है, वो 70% से 90% के करीब इफेक्टिव होगी, और इफेक्ट होने में भी लगभग जैसे 2 डोजेज होती है, 1 महीने के अंतर में लगते हैं, तो उसमें भी टाइम लगता है एंटीबॉडीज बनने में या आपके रोग के प्रतिरोधक क्षमता आने में। लेकिन मास्क नहीं हट पाएगा क्योंकि 100% इफेक्टिव नहीं है, हमें नहीं पता कि ये कितने टाइम तक इफेक्टिव रहेगी, तो मास्क आपको सोशल डिस्टेंसिंग वो कंटिन्यू करना है। तो डॉक्टर पांडे, कहने का मतलब ये कि अगर वैक्सीन आ भी जाती है और किसी व्यक्ति को 2 डोज लग भी जाती है, 2 डोज लगने के बावजूद भी आपको एक लंबे वक्त तक मास्क पहनना होगा। बिल्कुल, मास्क लगे रहेगा और आपको हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग को भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। Dr. Pankti, a question has come in on social media. Aman Jaiswal is asking, is continuously increasing pollution levels adding fuel to the fire of COVID cases? How would you respond to this? Especially with regards to lung health. Yes. Yeah, because pollution mainly affects the lung, because when we inhale these pollutants, they can damage our lung. So it can act twice, in 2 ways mainly, I will say. One is that when someone is living in a polluted city or a town, those lungs are already damaged, and every winter we are facing this problem in Delhi also. So if someone is already having a damaged lungs, he has developed chronic obstructive airway disease because of pollution, because of these hydrocarbon pollutants. So if COVID also occurs to those patients, so severity increases. Like one of the major symptom of a COVID is breathlessness. So सांस फूलने लग जाती है, so this breathlessness will increase if someone has a damaged lung. It's just like that someone already has a diseased lung, which is maybe called as a comorbid illness. So one thing is this, and there has been few studies from Western countries which suggest patient or lung tissue, when they are exposed to pollutant, they have overexpression of ACE receptors, which are
important receptors which are required for this virus to go inside the cells. So there has been these studies are in vitro studies. They are not done in general public, but they suggest that if someone has a pollution exposure, they will have more chances of having COVID and more chances of having severe COVID. जी डॉक्टर शरद चंद्र, लगातार जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया पे आ रहे हैं सर। इसमें एक सवाल ये भी आ रहा है कि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है महिलाओं में, वो जिनमें कम होने की शुरुआत हो जाती है या फिर जिनमें समाप्ति हो जाती है वो हार्मोन बनना, उन्हें कोरोना वायरस के खतरे का ज़्यादा चांसेस हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, डायरेक्टली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ऑल आई कैन से इज दैट ऑलमोस्ट एवरीबडी whoever is exposed, especially the elderly people, they have higher risks of getting COVID, and if you have comorbidities जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन या और कोई भी डिजीज है, उसमें भी खतरा बढ़ जाता है। There have been some couple of, but I won't say the evidence is too strong on estrogen. So as it stands, I wouldn't like to comment on it. Dr. Sharad Chandra, Narendra Srivastav is asking on Facebook, can an asymptomatic recovered person from COVID-19 take the vaccine, and is the Pfizer vaccine being used in India? So the Pfizer vaccine as of now is not being used in India because the emergency use authorization that they have sought has not been given. But how would you respond to the other question, that can an asymptomatic recovered person from COVID-19 take the vaccine, or does that person really require the vaccine? Because a lot has been said about antibodies and T-cells immunity post COVID-19 infection and how long that lasts. So what would you say, that does a recovered person really require the vaccine or not? Not at the first stage, but I believe once a critical mass of the population has been covered, it would be a strategy, a holistic strategy to increase the immunity of the overall population. Because the whole strategy of vaccine is not individualistic. It's based on communities, it's based on strategies by the countries, by the whole globe as such. So there will be some benefits individually, but still हम लोगों को precautions लेना पड़ेगा, जैसे कि mask भी पहनना पड़ेगा, बाकी social distancing करना पड़ेगा. But more and more people get vaccinated, that critical mass of population is going to increase, and that is going to be very, very important for the disease or the pandemic to get controlled. So once the number of cases comes down, then that is going to boost the confidence of people, and that slowly, hopefully, would allow us to get back to our normal lifestyle, how we were in the pre-COVID days. जी, और डॉक्टर पंक्ति, ये भी सवाल आ रहा है कि चूंकि अभी सर्दियों का मौसम है और इस मौसम में ज़्यादातर लोग अपनी खिड़कियों को, दरवाज़ों को बंद करके रखते हैं, ऐसे में जो वायरस है, क्या उन वायरस के लिए वातावरण अनुकूल हो जाता है, इसलिए हमें खोल के रखना चाहिए? क्या कुछ कहना है आपका? असीम जी, अगर आप घर की बात करें, अगर आपके घर में कोविड है तभी ये प्रॉब्लम है कि खिड़की खोलने या बंद करने की बात है। अदरवाइज ये तो वेदर के हिसाब से कि आप खिड़की खोलना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं, बट खोल के रखेंगे तो पॉल्यूशन ज्यादा आएगा, वो तो है दिल्ली में खासकर। और मेरे ख्याल से वायरस ऐसा ये एयरबॉर्न नहीं है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, खांसने से, कफ करने से ये लगभग 2 गज की दूरी जो हम कह रहे हैं 2 मीटर 2.5 मीटर तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी और की खिड़की से इस खिड़की के अंदर चला जाएगा, तो ऐसे डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। ओके सर। Sunil Kumar is asking on Facebook, Dr. Pankti, how to take care of fibrotic lungs? Fibrotic lungs की केयर naturally कैसे करें? हिंदी में जवाब दीजिए। जी हाँ, ये देखा जा रहा है कि जब ये कोविड, जिन लोगों को सीवियर कोविड होता है और गंभीर कोविड जिसे कहते हैं, जिनका कि ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो रहा है, SpO2 लेस देन 90% हो जाता है और लंग्स में बहुत सारे वायरल निमोनिया की पिक्चर आ जाती है, उन लोगों में देखा गया कि ये फाइब्रोसिस भी कर देता है, लंग को सिकुड़ देता है जैसे कह सकते हैं। तो ये एक तरह का पोस्ट कोविड सिंड्रोम है जिसपे लंग इन्वॉल्वमेंट मेजॉरिटी में ऑल्दो ये सब में नहीं होता, बट जिन लोगों में सिवियरली होता है उन लोगों के लंग्स फाइब्रोटिक हो जा रहे हैं। अर्ली स्टेज में तो आपको ऑक्सीजन थेरेपी दे के 95% से ऊपर रखना है, बहुत ज्यादा एक्सर्ट नहीं करना है, रेस्ट करना है। इन लोगों में ये भी देखा गया है कि थोड़े से जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म के चांसेस होते हैं, खून के थक्के जमा हो सकते हैं, तो उनमें कुछ टेस्ट कराते हैं डॉक्टर्स लोग, एडमिट करके टेस्ट भी कराएंगे, जैसे डी डाइमर कुछ टेस्ट होते हैं। अगर उनकी वैल्यूज ज्यादा है तो खून पतला करने के लिए कुछ लोग जैसे एस्पिरिन की दवाई देते हैं या कोई इंजेक्शन आते हैं एंटीकोगुलेंट, उसका भी रोल देखा गया है। बट और तीसरा रहेगा स्टेरॉइड का। वैसे तो गाइडलाइन में स्टेरॉइड एक्यूट इलनेस में ही दिया जा रहा है, बट क्योंकि पोस्ट कोविड में
इन्फ्लेमेशन के बाद फाइब्रोसिस हो रहा है, तो ये जो स्टेरॉइड है उसका भी रोल रहेगा, 1-1.5 महीने तक देते हैं। और अभी कुछ स्टडीज हो रही हैं, कुछ लोग एंटी फाइब्रोटिक ट्रीटमेंट भी है, बट ये सारे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जनरल पब्लिक को समझाना बड़ा मुश्किल है। बट अगर जी। किसी को फाइब्रोसिस हो गया है, फेफड़ा सिकुड़ गया है, उसको किसी स्पेशलिस्ट, पल्मोनरी स्पेशलिस्ट से कंटिन्यूअस टच में रहना चाहिए और उसके साथ इलाज कराना चाहिए। बट ये भी देखा कि बहुत रेयर इंस्टेंसेस में बहुत सीवियर फाइब्रोसिस हो जाता है, वो लोग अपना सांस को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजनेशन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों में देखा गया है कुछ, जैसे कि अभी रिसेंटली दिल्ली में भी लंग ट्रांसप्लांट हुआ था, 2-3 केसेस चेन्नई में भी हुए थे, तो उन केसेस में लंग ट्रांसप्लांट लास्ट रिसॉर्ट रहता है, बट ज्यादातर लोग स्टेरॉइड और ऑक्सीजन थेरेपी और से इम्प्रूव हो जाते हैं। ओके डॉक्टर पंक्ति, लगातार सवाल आ रहे हैं, उसमें से एक सवाल मैं एक दर्शक का ले लेता हूं एक फोन। पटना से हमारे साथ गोपाल जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। गोपाल जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। गोपाल जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरे परिवार के 2 आदमी कोरोना पॉजिटिव पाए गए जी और डॉक्टर जी पूछिए। और डॉक्टर से दिखाया, उन्होंने हाइड्रोक्लोरिन का टैबलेट लिखा है, क्या वो काफी है कि उसके साथ और दवाई लेना? डॉक्टर पंक्ति। हेलो। गोपाल जी, जैसे कि आप गोपाल जी, हाँ, मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है। जैसे कि आपने बताया शायद हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट आपको प्रिस्क्राइब की गई है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा आपके जो परिवार में है उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। अगर वो 95 से ज्यादा है, जो पल्स ऑक्सीमीटर छोटा सा एक डिवाइस होता है, अगर वो 95 से ज्यादा है तो शायद आपको ज्यादा दवाइयों की जरूरत नहीं है, ना स्टेरॉइड की, ना एडमिट होने की, आप होम आइसोलेशन में रह सकते हैं। तो बेस्ट होगा, अगर उनको बहुत तेज बुखार आ रहा है, उनकी जनरल कंडीशन ठीक नहीं है, तो अपने नियर बाई अस्पताल में जाके एक बार डॉक्टर से मिले। कोविड अस्पताल सभी जगह पे है, इवन बिहार में काफी प्रोग्रेस हुई है, तो वो देखेंगे कि उनको एडमिट होने की जरूरत है नहीं है। परिवार के सदस्य बहुत एल्डरली भी हो सकते हैं और उन लोगों को ज्यादा जरूरत है, यंग लोगों को ज्यादा सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे अभी बहुत ज्यादा स्टडीज जो आई नहीं है, बट जो आई है बहुत पॉजिटिव नहीं है, तो अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी ज्यादा जरूरत आपके माइल्ड डिजीज में तो नहीं पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से आप सैचुरेशन देखिए, जनरल कंडीशन देखिए और एक डॉक्टर से ओपिनियन ले लीजिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा मास्क और जो आपका घर में, क्योंकि ये एक तरह का सोशल डिजीज भी है, तो आपके 2 सदस्यों को हो गया, तो अगर आप 4 सदस्य की फैमिली है तो बाकी 2 को भी हो सकता है, तो आपके जो जिनको हो गया उनको भी मास्क पहनना है, जो बाकी लोग हो गए हैं उनको भी मास्क पहन के उनकी केयर करनी है। ओके डॉक्टर पंक्ति, हमारे साथ एक और दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं। उनका सवाल डॉक्टर राहुल रंजन है, जो कि वैशाली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। सर, मुझे ये जानना है कि मैं अगले महीने जाने वाला हूँ दिल्ली, तो मुझे ट्रेन में यात्रा करने के दौरान क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और मुझे दूसरे स्टेट में जाना है तो क्या मुझे कोरोना के टेस्ट करवाना होगा? डॉक्टर पंक्ति। राहुल जी, ऐसा है कि जो कोरोना का जो टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, दिल्ली में तो फ्रीली अवेलेबल है, इसमें कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो आपको भी पता होगा। बट कुछ स्टेट्स ने अपनी अपनी रिकमेंडेशन बनाई है। अगर आप उत्तराखंड जाते हैं तो आपको एक कोविड रिपोर्ट चाहिए, नहीं तो वो आपको आइसोलेशन सेंटर में रख देंगे। तो कुछ सेंटर, आप जिस स्टेट में जाएंगे आपको उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं जैसे यूपी में नोएडा से या गाजियाबाद साइड से रहते हैं, तो दिल्ली में ऐसा अभी केसेस उतने ज्यादा नहीं है, इतने पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अगर सिंपल मास्क पहने जब ट्रेवल करते हैं और ट्रेन में, और इधर उधर ज्यादा अवॉइड करें कि टच ना करें, और मास्क को बिल्कुल पहने रखें, क्योंकि ट्रेन में भीड़ भी हो सकती है। ऑल्दो सोशल डिस्टेंसिंग तो ट्रेन में भी पूरी का ध्यान दिया जा रहा है जी। और मास्क को अगर ठीक से रखें, हाथ की हाइजीन रखें और बहुत क्राउडेड प्लेस में न जाएं, तो आप कोरोना से बच सकते हैं और दिल्ली में आ सकते हैं और वापस भी जा सकते हैं। चलिए, there's a caller who's joined us from Delhi. आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, पूछिए अपना सवाल। कैन यू हियर मी? यस प्लीज गो अहेड। यस, आई एम आस्किंग, मुझे कोविड हुआ था सितंबर में, एंड आई वांट टू नो कि कितने टाइम तक एंटीबॉडी वो रह सकती है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, कैन यू हियर मी? यस। या एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज, कई केसेस में HCQ दे रहे हैं प्राइवेट क्लिनिक वाले, और बट दिल्ली गवर्नमेंट से जब मुझे मेडिसिन दी गई थी, दैट कंटेन्स विटामिन सी, मल्टीविटामिन, जिंक सल्फेट, पैरासीटामोल एंड
गैस टैबलेट. सो क्या डिफरेंस है दोनों में, एंड इज देयर एनी काइंड ऑफ वरीज? जी डॉक्टर पांगती, आपने HCQ पे जवाब दे दिया है, लेकिन उनकी सुविधा के लिए अगर आप फिर से बता दें. और दूसरा उन्होंने पूछा है कि एंटीबॉडीज कितने समय तक बॉडी में रहती हैं इन्फेक्शन के बाद. देखिए, ये जो एंटीबॉडीज हैं बहुत तरह की है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा. ये जो डिजीज है लगभग 5 से 7 दिन की इंक्यूबेशन पीरियड होता है. उसके बाद लोगों को या तो सांस की तकलीफ, खांसी या बुखार की तकलीफ होती है. 14 दिन के करीब में ये वायरस कम होके कई लोगों में नेगेटिव हो जाता है, और हम 17 दिन का टोटल आइसोलेशन पीरियड रख रहे हैं. 17 दिन के बाद जिसको माइल्ड डिजीज है, हम कहते हैं इसको कोरोना ठीक हो गया है, और कई लोगों को माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को दोबारा टेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है. तो ऐसा देखा गया है लगभग ये एंटीबॉडीज चौथे वीक तक आ जाती है, तीसरे से चौथे वीक. तो अगर आपको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है, जिस दिन आपको सिम्टम शुरू हुए उसके 28वें दिन, लगभग 4 वीक के बाद एंटीबॉडीज कराने चाहिए. उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके एंटीबॉडीज है या नहीं है. एंटीबॉडीज भी 2 तरह के IgM IgG होते हैं, ज्यादातर किट कंबाइंड कर रहे हैं. तो आप 28 दिन के बाद टेस्ट करा सकते हैं. बट अगर आपके पास माइल्ड डिजीज हुई है तो आपके एंटीबॉडीज नेगेटिव भी आ सकते हैं. बट आप उससे परेशान ना हो. ऐसा देखा गया कि जिनके एंटीबॉडी नेगेटिव भी हैं, जब उन्हें दोबारा कोरोना का इन्फेक्शन अगर हो तो वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं दोबारा. तो अगर प्रूवन कोविड आपको है तो एंटीबॉडीज हो ना हो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. आपको डिजीज माइल्ड हो तो अच्छी बात रहेगी. डॉक्टर शरद चंद्र, हमारे पास समय की कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा. डॉक्टर, ये शांति मल्होत्रा हमारे सोशल मीडिया पे हैं, उनका एक सवाल है कि अभी मार्केट में बहुत सारे वैक्सीन आने वाली हैं, क्या जो सबकी एफिकेसी की जो लेवल होगी वो सेम होगी, और जो कंपोनेंट्स जिससे वो बन रहे हैं क्या वो भी सबके सेम होंगे? जी, इससे पहले मैं एक और क्वेश्चन आंसर करना चाहता हूं, जो अक्सर लोगों में आती है कि हमें रिपीट टेस्ट करना चाहिए क्या, और रिपीट टेस्ट के बाद ही क्या हम कोविड पॉजिटिव, कोविड नेगेटिव या कोविड पॉजिटिव बोला जाता है. तो आजकल का गाइडलाइंस बहुत क्लियर है कि रिपीट RT-PCR में कोई वैल्यू नहीं है. रिपीट RT-PCR सिर्फ मॉडरेट या सीवियर डिजीजेस में शायद करके देख सकते हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि CT वैल्यू से भी डिटरमाइन होता है कि एक्टिव इन्फेक्शन है कि नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस अभी CDC से और ICMR से क्लियर कट है कि रिपीट RT-PCR का कोई वैल्यू नहीं है. और जैसे बता रहे थे डॉक्टर साहब, 17 डेज तक अगर आप आइसोलेशन में रखे हैं उसके बाद हम नेगेटिव ही मान सकते हैं. दूसरी बात आई कि वैक्सीन की सारी एफिकेसी क्या एक होगी कि अलग होगी. At this point of time, we don't know. The reason is that the way they're testing the vaccines, for instance, कुछ वैक्सीन है जिनको हमने डायरेक्ट चैलेंज करके टेस्ट किया. इसका मतलब है कि अपने वैक्सीन दिया और फिर डायरेक्टली उनको वायरस को एक्सपोज किया. और जैसे मॉडर्ना ने उन्होंने ये किया कि बहुत सारे नॉर्मल लोगों को वैक्सीन करके दिया और देखा कि कितने लोगों को कोविड हो रहा है कि नहीं हो रहा है. मेथोडोलॉजी ऑफ टेस्टिंग द वैक्सीन भी अलग अलग है, इसलिए इफ इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि सबकी एफिकेसी एक जैसे है कि अलग है, क्योंकि उसकी मेथड्स ऑफ टेस्टिंग भी अलग अलग है. लेकिन ये बोल सकते हैं कि जो भी आएगा वैक्सीन, दैट विल बी वेल अप्रूव्ड and I'm sure will be safe to use for most of the population. ठीक है सर, हर किसी को इंतजार है कि कब वैक्सीन आएगी, कब लगेगी. बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का, चूंकि हमारे पास समय की इतनी कमी है. मुनमुन जी, that's it then in this edition of Dr. Speak. To those whose questions we could not take up because of paucity of time, you can ask them again tomorrow. We'll be live again from 3:30 to 4 in the afternoon. Until then, goodbye. Thanks for watching. नमस्कार. मरहबन इलल हिंद. जरी इंडिया. सलाम इंडिया. नमस्ते इंडिया. नमस्कार भारत. मुई इंडिया. नहनु हुनूर. इंडिया. माँ हिंदी हस्ती. हिंदिया न्यूज़. सलाम हिंदुस्तान. We are India.